بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 2 سے 6 تک کی تفسیر نمبر 4 اور تفسیر نمبر 4 کا پارٹ 2 دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم والنازعات غرقہ کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو تفسیر نمبر 4 ہے یہ والنازعات کے جو معنی ہیں باب کے مشابہ ہونا، اس حوالے سے یہ تفسیر ہے۔ اور ہم نے والنازعات کے جب لغت میں معنی دیکھے تو اس معنی سے جو تفسیری معنی بنے تھے والنازعات غرقہ کے، وہ تھے وہ جماعتیں جو اپنے روحانی یا جسمانی باپوں سے انتہائی مشابہت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اسی معنی سے آگے والناشطات نشطہ جو ہے اس میں دوسری خوبی بیان ہوئی ہے، اور اس دوسری خوبی جو ہے وہ مسلمانوں کی دور دور تک پھیل جانے کی جو پیش گوئی ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اتباع رسول جو ہے اس حوالے سے والناشطات نشطہ میں اتباع رسول کی تفصیل ہے اس میں۔ پھر والسابحات سبحا تیسری خوبی کی پیش گوئی ہے، اور اس میں صحابہ اکرام کے جو کردار ہے ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جذبہ خدمت کی تفصیل ہے۔ پھر فا کا والسابقات سبقہ میں فا کا استعمال اور سبقت کا جو جذبہ ہے اس کی تفصیل ہے، اور پھر فالمدبرات امرا اس میں ان تمام خوبیوں کے بعد جو لازمی نتیجہ نکلے گا اس کی تفصیل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، آیت نمبر 3 اور 2 سے شروع کریں تو والناشطات ناشطہ مسلمانوں کے دور دور پھیل جانے، دور دور پھیل جانا، والناشطات ناشطہ دور دور پھیل جانا آسانی کے ساتھ، ناشطہ کا مطلب آسانی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دور دور پھیل جائیں گے، جس طرح کے ناشطہ کے ایک معنی پھیل جانے کے ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے لغت میں ناشطہ من المکانی خرج ومن بلد الی بلد، اور اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں قاطع، یعنی نشتن جو ہے اس کے معنی ہے سفر کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ ٹھیک ہے، یہ اردو میں معنی ہے۔ عربی میں کیا معنی تھے؟ قاطع، ٹھیک ہے، خرجہ ومن بلد الی بلد۔ تو اردو ترجمہ اس کا کہ ناشتن کا سفر کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی ہوتا ہے۔ پس والناشطات نشطہ کے معنی یہ ہوئے کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا میں پھیل جانے والے ہیں، ان کے دلوں میں وطن کی محبت ہے، لیکن صداقت کی خاطر یہ لوگ وطن چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، مگر تمہارے ظلموں کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پیش گوئی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسلام میں ہجرت کا تصور، اب یہ وطن چھوڑنے کا جو بات ہے، جو وطن چھوڑنا ہے اس کو ہجرت کا نام دیا گیا ہے، اور اسلام میں ہجرت کا جو تصور ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ در حقیقت اسلام نے سب سے پہلے اس مسئلہ کو پیش کیا کہ وطن بے شک اچھی چیز ہے، مگر صداقت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر وطن میں رہ کر صداقت کو چھوڑنا پڑتا ہے، اگر وطن میں رہ کر صداقت کو چھوڑنا پڑتا ہے تو تمہارا فرض ہے وطن کو چھوڑ دو، صداقت کو قائم رکھو۔ دوسری جگہ اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ النساء کی آیت نمبر 101 میں ہے، ترجمہ پڑھوں گی یہاں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو بہت وسیع پائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے اور اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔
फिर लेकिन यहाँ पे फरमाया कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि इन्हें किस कदर ही दुख दिए जाएं, वो वतन को छोड़ने की ताकत अपने अंदर नहीं पाते, मगर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें हमने नाशितात बनाया है, नाश्ता आशितात बनाया है, जिनके नज़दीक अल्लाह ताला के लिए वतन छोड़ना आसान है। इस पेशगोई के बाद मुसलमानों ने 2 दफ़ा हिजरत की थी। पहली हिजरत हबशा और फिर दूसरी हिजरत मदीना। फिर ये वतन छोड़ने की जो कुर्बानी थी, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जिस्मानी कुर्बानी भी देंगे। जिस्मानी कुर्बानी की तफसील है कि नाज़ियात में जिस्मानी कुर्बानी की तरफ भी इशारा किया गया है, और जिस्मानी कुर्बानी इस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक इंसान में मेहनत, मशक्क़त बर्दाश्त करने की आदत ना पैदा हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमान इस बारा में आला दर्जे की सफ़ात अपने अंदर रखते हैं। इन्हें कौमी आदत की वजह से बदियों से खुद को रोकने में मेहनत करनी पड़ती है। मतलब उससे पहले, इस्लाम से पहले वो बहुत सारी बदियों में थे, तो उनकी एक आदत बन चुकी थी पूरी कौम की। तो उस आदत से अपने आप को रोकने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मगर वो इस मेहनत को बर्दाश्त करते हैं। फिर नंबर 3 पे है कि नेकियों के मैदान में तरक्की करने की काबिलियत रखते हैं। नाशितात में बताया कि वो सिर्फ जिस्मानी कुर्बानी का मादा नहीं रखते। नाज़ियात में क्या बताया कि वो जिस्मानी कुर्बानी की तरफ भी इशारा है, और नाशितात में बताया कि वो सिर्फ जिस्मानी कुर्बानी का मादा नहीं रखते, बल्कि वतन को कुर्बान करने का मादा भी इनमें पाया जाता है, और वतन को छोड़ना भी कौमी तरक्की का एक ज़रिया हुआ करता है। फिर अगली आयत वस्साबिहाती सबहा में फरमाता है, इसके एक मानी जो है वो है कौमी खिदमत मुफ्त में करते हैं सबहा तेजी से। इसका साबिहात का जो रूट वर्ड है, मादा है, वो है सीन बा हा। तो जब कहा जाता है साबाहल रुजल, तो उसके मानी होते हैं तसर्रफा फी माशी, यानी आदमी अपनी रोजी कमाने में लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो कौम के लिए तनख्वाह पर काम नहीं करते, बल्कि ये लोग मेहनत करके अपनी गुज़र-औक़ात करते हैं। यानी जब कौम की खिदमत करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो उससे तनख्वाह नहीं लेते, बल्कि अपनी जो रोज़ी है वो अपने अलग से मेहनत करके कमाते हैं। ये लोग मेहनत करके अपनी गुज़र-औक़ात करते हैं और कौमी खिदमत के कोई तनख्वाह नहीं लेते। दरअसल कौमी तरक्की का रास्ते में एक बड़ी रुकावट ये होती है कि मुफ्त में काम करने वाले नहीं मिलते। माज़रत, यहाँ पे कौमी तरक्की के रास्ता में एक बड़ी रुकावट ये होती है कि मुफ्त में काम करने वाले नहीं मिलते, इसलिए हुकूमतें जो होती हैं वो तनख्वाहदार फ़ौजें और मदरस रखती हैं और काम करने वाली रखती हैं। और अगर इस्लाम में भी ऐसा होता तो मुसलमानों के पास तनख्वाह देने के लिए उस वक़्त कोई माल नहीं था, कोई पैसा नहीं था। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में कौमी कामों के लिए मुफ्त खिदमत पेश करने का जज्बा डाल दिया। फिर इन आयात में सहाबा कराम जो हैं उनका नक्शा भी खींचा गया है। नंबर 1, तमाम बदियों से बचते हैं, नेकियों के मैदान में बढ़ने की कोशिश करते हैं, वतन की कुर्बानी इनकी नज़रों में बिल्कुल जो है वो मुश्किल नहीं है, कौम की खिदमत मुफ्त में करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते हैं, जब वो लड़ने के लिए कहते हैं तो फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, और जब सुलह के लिए कहते हैं तो सुलह कर लेते हैं। हमने ये भी पढ़ा था ना कि जब जिस काम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रोकते हैं उससे वो रुक जाते हैं। सदका का हुक्म देते हैं तो अपना सारा माल सदका खैरात में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना है। इस सब का जिक्र करके अल्लाह ताला कफ़ारे मक्का को बताता है कि तुम गौर करो और सोचो कि तुम इन मुसलमानों का मुकाबला कैसे कर सकते हो।
जिस तरह सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शौक़ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तामील करते हैं, क्या मक्का वाले अपने सरदारों की कर सकते हैं? बस अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मुसलमानों की तादाद तुम्हारे मुकाबले में कम है, मगर दुनिया जो है वो तादाद से पता नहीं होती, बल्कि काम करने वालों से होती है, और काम करने वाले मुसलमानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, फस्साबिकाती सबका, फिर इनकी जो आगे निकलने वाले हैं, आगे बढ़ना। यहाँ पर जो फ़ा का इस्तेमाल है वो एक लाज़मी जो नतीजा है उसके मानों में हुआ है। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मुसलमानों की ये हालत है तो इसका लाज़मी नतीजा ये होगा कि ये इन लोगों और कौमों पर फ़तह पाएंगे जिनमें मुफ्त खिदमत नहीं है, क्योंकि फस्साबिकाती वो नेकी में आगे बढ़ने की लगन रखते हैं, एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हर शख्स जो है वो चाहता है मैं उस दूसरे से बढ़कर नेकी में आगे बढ़ जाऊं, नेकी में उससे बढ़कर हिस्सा लूं, उससे नेकी में उससे आगे बढ़ जाऊं। तो इसलिए जब ये सब के सब अपने घर से रोटी खाकर खिदमत करेंगे तो तुम किस तरह इनका मुकाबला कर सकोगे? फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि तुम ज़्यादा तादाद की वजह से जीत जाओगे। कौम काम करने वालों से बड़ी होती है, ना कि तादाद से। जब जज्बा खिदमत में ये दूसरी अक़वाम पर गालिब आ जाएंगे, में जज्बा खिदमत फसाबिकात यानी कि नेकियों में आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो सबसे ज़्यादा होगा जब वो दूसरी अक़वाम पर जज्बा खिदमत में जब दूसरी अक़वाम पर गालिब आ जाएंगे, तो फिर लाज़मी बात है कि हुकूमत भी उनके हाथ में आ जाएगी। फिर आगे चुनाचे फल मुदब्बिराति अमरा, फल मुदब्बिराति अमरा में क्या कि हुकूमत जो है वो उनके हाथ में आ जाएगी, जो तदबीर करने वाले हैं वो यही होंगे। जब ये काम के लिहाज से तुम पर गालिब आ गए तो हुकूमत भी इनके हाथ में आ जाएगी, तुम्हारे हाथ में नहीं रह सकती। इन चारों मानी के लिहाज से ये जो आयात हैं इनमें एक तरतीब नज़र आती है, और जो बेचैनी और इज़्तिराब मुफस्सिरीन के मानों में पाया जाता था कि कभी नाज़ियात से सितारे मुराद लिए गए और कभी फरिश्ते, और फिर अगली आयत के मुतल्लिक़ ये कहना कि उनमें भी यही मज़मून पाया जाता है, वो इज़्तिराब इन मानी में नहीं है, और ये सब के सब ऐसे मानी हैं जो तरतीब के साथ इन आयात पर पूरे हो रहे हैं। तो इन आयात को समझने में ज़्यादा अच्छी तरह से जो है हमें समझ आती है, और ये सारे मानी इन पर पूरे उतरते हैं। अगर हमसे कहीं कोई गलती कोताही हो गई है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और अपने फ़ज़ल से हमारे इस काविश को कबूल करके हमें सबसे बेहतरीन अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा अगली आयत के साथ आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।